ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ جب مجھے اسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹر بھی ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں مان گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گئے، جہاں 11 ڈاکٹرز تھے جو مجھے میرا نام شبنم ہے اور میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں اماں ابا اور بھائی کے ساتھ لاہور میں رہتی ہوں۔ اس شہر میں ہی میری پیدائش ہوئی، اسی لیے میرا اس شہر سے بہت پکا تعلق ہے۔ میرے ابا اسپتال میں مالی ہیں، اماں ہاؤس وائف ہیں۔ میرے دادا نے بھی شہر میں رہ کر چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ابا اور 2 پھپھوں کو پالا تھا۔ ابا کا مزاج نرم ہے، اس کے برعکس میری اماں جھگڑالو طبیعت کی مالک ہیں۔ وہ ہر وقت کسی بات کو موضوع بنا کر زبان چلاتی رہتی ہیں۔ ان کے تیز مزاج کی وجہ سے بہت کم ہی کسی سے بن پاتی ہے۔ پھپھو بھی کم ہی آتی تھی۔ وہ دونوں نرم مزاج خاتون تھیں۔ میری پیدائش کا اماں کا برا سا منہ بنا رہا۔ ابا کو بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھپھو کہتی مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے، کہتی بوجھ پڑ گیا ہے۔ میرا رنگ سفید تھا، اتنی پرکشش تھی۔ مجھ سے بڑا بھائی تھا جو اماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ کوئی بھی کام کر لے یا کسی غلط، اماں کی سپورٹ اسے ہر وقت رہتی تھی۔ اماں اس کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ لوگ کبھی شکایت لاتے تو الٹا اماں اسے سنا کر بھیج دیتی تھی۔ انہی باتوں نے بھائی کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ اماں کی تو کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ اگر ابا کچھ بولیں تو اماں ان کی طرفداری میں شروع ہو جاتی کہ تمہیں تو دوسروں کے بچے ہی پیارے لگتے ہیں، اپنے بیٹے میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی غصے کا تیز گرم دماغ انسان تھا۔ اسے کام ایک بھی نہیں ہوتا، باقی بھاشن کہیں بھی دینا ہو تو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کہتا غریب گھر میں پیدا ہونا ایک عیب ہے۔ وہ ابا کو کہتا اگر آپ نے کمایا ہوتا تو آج ہم امیر ہوتے۔ میں بھی کہہ سکتا کہ میرے باپ کا بزنس ہے۔ ابا سر جھٹک دیتے۔ سمجھانے یا نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ جو نہیں تھا۔ میں ان کو بہت پیاری تھی، کہتے اپنی پپو سے کچھ سیکھا کرو، میرے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ اسی وجہ سے بھائی کہتا اسے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، جا کر یہ بگڑ جائے گی۔ اماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا کہتے یہ میری بیٹی ہے، میں کما کر کھلاتا ہوں، جب تم لوگ کھلاؤ گے تب بے شک اپنی مرضی کے فیصلے کر لینا۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اپنے رب کا کم تھا، جس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا تھا، جو ہمیشہ میرے حق میں کھڑا رہتا تھا۔ وہ میرے لیے بولتا تھا، جو میرے سے محبت کرتا تھا۔ جب گھر کو ایک نظر دیکھتی کہ یہاں تو کسی کو میری ضرورت ہی نہیں، پھر کیوں اللہ نے مجھے یہاں پیدا کیا، تو صرف اپنے باپ کی شخصیت کو دیکھ لیتی۔ ہاں، وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابا نے کہا فیصلہ بھی میری مرضی سے ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم ایک پرانی کالونی میں رہتے تھے۔ یہ آزادی سے پہلے کے گھر تھے جن کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے تھے، اس میں 2 کمرے اور 2 پرانے صوفے جتنی اضافی جگہ تھی۔ یہ بلڈنگ بہت پرانی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہ رہے تھے، یہاں کچھ سال پہلے سفید رنگ کروایا تھا، جو اس سے پیلا ہو چکا تھا۔ اب یہ کچن میں جہاں ایک وقت صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا، اسٹیل کے برتن سیٹ تھے۔ کبھی غلطی سے مہینے میں کوئی مہمان آ جاتا تو تنگی ہو جاتی تھی۔ یہاں فلیٹ میں میری ایک دوست تھی، وہ میرے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت کم آتی تھی۔ جب ابا گھر ہوں ان کی اجازت لے کر میں پارک چلی جاتی، جہاں ہم مل لیتے تھے۔ میری ننیال میں صرف 2 پھپھو ہی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ دونوں ابا کی طرح نرم مزاج انسان تھے، جبکہ ننیال میں ایک ماموں تھے جو بالکل اماں کی کاپی تھے۔ جب آتے کہتے اس کو پڑھا کے بھلا کیا ضرورت ہے، اس کو گھر کے کاموں میں لگایا کرو۔ بھائی کی ان سے بہت بنتی تھی، وہ جو کہتے اماں اور بھائی پتھر پر لکیر مان لیتے۔ ان کا کام لوگوں کے گھروں میں ٹانگ اڑانے کا تھا۔ جب آتے اماں کو اتنی پٹیاں پڑھا جاتے کہ ان کی بیٹی بھی ایسی تھی، جو میری ہونے والی بھابھی بھی تھی۔ میں یہاں گھر کے پاس ایک اسکول میں پڑھتی تھی، جبکہ گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر آنے کے علاوہ اماں مجھے کہیں جانے نہ دیتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ میری اصل ماں ہے۔ ایک اصل ماں بھی اتنا تضاد کر سکتی ہے، ایک بیٹے کو اتنی محبت دے اور دوسری کی تھکن اور پڑھائی کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں جھاڑو پوچھا پکڑا دے کہ کام کرو۔ ابا کہتے کہ تم کام کیا کرو بیٹی، ابھی چھوٹی ہے، تو اماں کہہ دیتی مجھ سے نہیں کام ہوتے،
अगर आपने अपनी मर्जी चलाकर इसे पढ़ाया है तो इसको मेरी मर्जी के मुताबिक भी काम करना चाहिए। मैं 8वीं जमात में हो गई, जैसे तैसे अब तो आदत ही हो गई थी अम्मा की बातें सुनकर काम करना, लेकिन इस दौरान मुझ में अजीब तब्दीलियां आई थी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मेरी आवाज़ नहीं बदली थी और मैं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं हुआ। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया। मुझे अपने भाई की तबीयत का अच्छे से इल्म था। उसने या तो मुझे घर से निकाल बाहर करना था या फिर मार देना था। क्या पता अब्बा भी इसके बाद मुझसे प्यार ना करते, और जो दोस्त थी उसने भी दोस्ती ख़त्म कर लेनी थी। मेरी पढ़ाई तो यहीं रुक जानी थी। मैं कैसे किसी का सामना करती। सबने मेरा मजाक बनाना, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। ख्वाजा सरा के हवाले कर दी जाती तो वो मुझे नचवाते। मैं नाच गाना नहीं करना चाहती थी, मुझे पढ़ना था, नौकरी करनी थी। मैं चुप करके पढ़ने लगी। मामू ने घर में अम्मा से भाई की शादी की बात की। अब्बा कहते हैं अभी कुछ कमाता नहीं है, मुझ पर बोझ है, कैसे इसकी शादी करूं। अम्मा कहती मेरे भाई की बेटी क्या बैठी रहेगी। मैंने इतने दिल से हाथ मांगा था। मैंने शादी के लिए हाँ न की तो भाई कहीं और कर देगा, फिर पलट कर बात भी नहीं करेगा। अब्बा कहते हैं अगर इतनी भाई की परवाह है तो उसकी बेटी की जिंदगी तबाह ना करो। अम्मा कहती हैं ऐसे कैसे जिंदगी तबाह होगी, आपने मेरे बेटे को समझा क्या हुआ है। जब वो घर आएगी ना, आप देखना उससे मोहब्बत करता है, उसकी बात मानकर कमाने भी लग जाएगा। अब्बा कहते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं नहीं खिला सकता, ना मेरे पास शादी पर खर्चा करने को पैसे हैं। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा आपके पास पैसे होते ही कब हैं, मेरा भाई खुद ही कर लेगा। अब्बा तंजिया हंस दिए। अभी मजीद जंगें होना बाकी थी। अब्बा के खानदान वालों को शादी पर ना बुलाने का ऐलान किया गया। अब्बा और अम्मा के दरमियान सही जंग लड़ी। भाई ने भी अब्बा से खास बदतमीजी की कि खर्चा उनका मामू कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से बुलाएंगे। अब्बा ने कहा अगर मेरी बहनें शामिल न हुई तो मैं भी शामिल नहीं होऊंगा। अम्मा तो कलस कर रह गई। मुझे भी एक जोड़ा ले गया। भाई की शादी की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हुआ था। वो हर काम खुशी से कर रही थी, कोई मुझे ताना नहीं दे रही थी। भाई भी आजकल घर आकर लड़ाई कम ही करता था, वरना जब आता तो अजीब अजीब से सवाल करता कि लड़कों से तो नहीं मिलती, कभी स्कूल बैग खोल कर देखने के जाते, हमेशा कुछ ना कुछ कहता। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता होती कि मेरा भाई मुझसे ऐसी बातें करता है। खुद वो रोज़ मामू की बेटी से लगा होता था, जिसका अम्मा को भी इल्म था। वो भी तो किसी की बेटी थी। घर में जैसे तैयारी हुई, निकाह पढ़ा कर ले आए तो मामू या भाई पर वक्त, पर्दे, चादर, शराफत का दर्स देते थे। उन दोनों में से एक भी नमाज पढ़ने नहीं जाता था। घर में मैं और अब्बू पर नमाज पढ़ते थे। जैसे भाभी आई, भाभी और भाई की एक ही रूटीन थी। 12 बजे उठते, स्कूल से आकर नाश्ता बनाकर देती। अब्बू ने कहा बहू कभी खुद भी कुछ अपने और अपने शौहर के लिए बना लिया करो, मेरी बेटी तुम दोनों की नौकर नहीं है। इस बात पर भाभी भड़क उठी कि अगर 2 दिन काम कर लेगी तो क्या होगा, अभी मेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। अम्मी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा बहुत परेशान रहते, कहते मुझे फिक्र रहती है मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। मैंने कहा अब्बा आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो हंस देते, कहते मौत पूछकर थोड़ा ही आती है। मेरी दोस्त कहती तुम्हारी भाभी बड़ी चालाक है, बच कर रहा करो। मैं अपनी दोस्त को क्या बताती, अपनी भाभी को एक आंख नहीं भाती मैं। वो समझती मैं मीसनी हूँ, घर वालों को शिकायत लगाती हूँ। अम्मा मुझे पुप्पो के घर भी जाने नहीं देती थी। पुप्पो मेरी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनकी बेटियों से मेरी बहुत बनती थी। मैं उन झमेलों में अपनी हकीकत भी भूली नहीं थी। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। ये बात अक्सर मुझे रात को भी डराती थी कि हकीकत खुलकर घर वालों के सामने आ गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं कहती अल्लाह इस राज का पर्दा ही रखना, वरना तेरे लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एक हफ्ता मजीद गुजारा तो एक दिन भाई भाभी को अब्बा कहते अब खैर से बीवी वाले हो गए हो तो नौकरी शुरू कर दो। मेरा भाई कहता मुझे कोई मसला नहीं है नौकरी में, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। भाभी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा कहते हैं अरे पास इतने पैसे नहीं जितने वो घर की शादी में लगा दिए। भाभी तड़क कर बोली शादी की तैयारी में घर में रंग रोगन के सिवा किया क्या है। अब्बू कहते जो भी हूँ मैं मोटरसाइकिल लेकर बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। भाई कहते ठीक है फिर मैं अपनी नौकरी नहीं करूँगा। अब्बू कहते अगर नौकरी नहीं करनी तो घर से निकल जाओ। अम्मा कहती हैं ऐसे कैसे जवान बेटे को निकाल रहे हैं। अब्बा कहते काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब्बा का बीपी शूट कर गया, बड़ी मुश्किल से दवाई लेकर आराम आया। मैंने भाई को कहा कि अगर अब्बू कह रहे हैं तो आप छोटा मोटा काम देख लें। वो मुझ पर ही चढ़ दौड़े, वो अपनी जिद पर कायम थे। भाभी भी अब अब्बा को बुरा भला कहती थी, जो मुझे ज़रा पसंद नहीं था। मैंने तो कभी
ماموں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مرچ مسالے لگانے کا کام وہ کرتے تھے۔ ابھی بھی بھائی کو روکنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے بڑھاوا دے رہے تھے۔ ابا نے کافی مہینے بات نہ مانی، لیکن تھک ہار کر بائک لے دی کہ قسط اسی صورت بھروں گا جب تم کام پر جا کر میرے ہاتھ پر کمائی رکھو گے۔ میں نے کالج میں ہونے کی تیاریوں میں تھی۔ ابا نے کہا جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ بھابھی نے کہا کوئی عاشق تو نہیں ہے جس کے بہانے تو جانا جاتی ہے اور نام پڑھائی کا لے رہی ہے۔ بھائی کہتے ایسا کام ہوا تو وہیں پہ مر جاتا، ورنہ میں مار دوں گا۔ میرے ماموں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئے۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا، کہتی شادی کر دی تو میرا راز کھل جائے گا، لیکن شکر تھا کہ ابا نے کہا کہ ابھی نہیں۔ اس پر اماں اور بھائی سمیت بھابھی کو طیش تو بڑا آیا، لیکن ابھی ابا کماتے تھے، ان کے فیصلے ماننا ان کی مجبوری تھی۔ بھائی بھی نہ جانے کہاں جاتا، لیکن چند پیسے لا کر بیوی کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ ابا بھی کچھ آرام دہ ہو گئے تھے۔ ابا کا کمانا جاری رہا، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے ابا کے سامنے سچ کھل جانے کے علاوہ۔ شکر تھا میرے رشتے آنے بند ہو گئے تھے، میں آرام سے پڑھ رہی تھی۔ جیسے کہ کالج ختم ہوا، 2 سال میں بھابھی اب امید سے ہوئی تھی۔ بھائی کا وہی دھندا تھا، کبھی کام پر لگ جاتا تو کبھی چھوڑ کر مہینوں مہینوں گھر بیٹھا رہتا۔ ابا کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا پڑتا تھا۔ میں بہت دعا کرتی کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ ان کی مدد کر سکوں، لیکن شاید وہ گھڑی ابھی زندگی میں آنی باقی تھی۔ میں نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ بھابھی کہتی ہے میرے بھائی کے ساتھ نہیں کیا اور آپ نے وہاں کر دیا۔ میں اگر لڑکی ہوتی تو خوش بھی ہوتی۔ میں روتی کہ اللہ مجھے کیوں ایسے ہجڑا بنایا ہے جس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ میری پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، وہ اچھی نوکری کرتا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ میرے باپ نے فٹ سے ہاں کر دی۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ شاید میں نرسنگ کے بعد ہونا طے ہوئی۔ میرا رشتہ ہوتے ہی بھابھی نے بھائی کے کان بھرے، ضرور اس سے بات ہوتی ہوگی۔ تبھی رشتہ آیا۔ بھائی مجھے مارنے لگا۔ اگر ابا نہ ہوتے تو شاید مجھے جان سے مار دیتا۔ 2 سال پلک جھپکاتے گزر گئے۔ میں نے اسپتال میں نوکری شروع کی۔ وہیں ابا نے میری شادی کا دن بھی فکس کر دیا۔ میں بہت خوش گھر سے نکلی، لیکن راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ وہیں پہ مر گئے۔ ان کی باڈی گھر آئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ مجھ سے پیار کرنے والا واحد سہارا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب مجھے گرم ہوا سے کون بچائے گا؟ ابا کی موت کا سب سے زیادہ گھر میں مجھے ہی دکھ تھا، باقی سب تو کھیل تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کے اوپر ساری ذمہ داریاں آ رہی تھیں، جس سے وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ گیا تھا۔ میرے منگیتر نے ہی سارے انتظامات دیکھے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی اس سے شادی کر لیتی، لڑ کر سب سے کر لیتی اگر میں لڑکی ہوتی، لیکن اب مجھے پتا تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ لوگ یہ رشتہ توڑ دیں گے، اور یہی ہوا۔ ابا کا بھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ بھائی نے انہیں رشتے سے انکار کر دیا۔ میں تو اس غم سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ دن رات ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہتا تھا۔ پپو نے بہت منت ترلے کیے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ گھر میں حالات فاقوں پر آ گئے تھے۔ بھائی کو فرق نہ تھا۔ میں نے اسپتال کی نوکری جاری رکھی۔ بھابھی بھی بہت شیریں لہجے میں بات کرتی تھی تاکہ رقم لا کر ان کو دوں۔ کہتی میں ماں بننے والی ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے جو تمہارا بھائی 1 روپیہ مجھے دے۔ میں ان کی ساری چالاکی سمجھتی تھی کہ اگر ان کی خود کی مجبوری ہوتی تو شاید وہ مجھے بدچلن کہتی، نوکری کرنے پر فتویٰ لگا دیتی۔ جس پر اسپتال میں نوکری شروع کرتی تھی، یہاں بہت سے مردوں کی آنکھوں میں سپنے لیے پسندیدگی دیکھتی تھی۔ شروع سے ہی مرد کو پہلی نظر میں پسند آئی، لیکن میں کسی سے آج تک دوستی نہ کی تھی۔ کبھی جھوٹ بول کر پیسے یا گفٹ نہیں بٹورے تھے، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو کرتے دیکھا تھا جو وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے تھے، جہاں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جہاں کا آپ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسپتال میں کام کرتے اتنے دن گزر گئے تھے، میں خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اگر اس نے کوئی بتا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ میں بھلا کیسے شادی کر سکتی تھی کہ رات پہ سب نے مجھے طلاق دے کر معاشرے میں بدنام کر دینا تھا۔ جب مجھے اسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے جو بہت عجیب نظروں سے گھورتے تھے، جیسے ہوس ٹپک رہی ہو۔ میں نے بہت بار اگنور کیا، ان کی آنکھوں کے پیغام کو میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر نے میرے پاس آئے اور بولے مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں نے سوچا اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے
अच्छे खासे पैसे मांगूंगी, फिर तलाक हो जानी है। वैसे भी कौन सा अब मियाँ बीवी वाला ज़वाजी ताल्लुक़ रखना है, जो कुछ बुरा होगा। मैं मान गई, लेकिन शर्त रखी कि मेरे घर रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। घर आकर बताया तो अलग तमाशा था। भाभी ऐसे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। अम्मा कहती यही सब करने तो वहाँ जाती है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप लोगों का भला सोच रही हूँ। भाभी कहती है मेरी इस हालत में तुम भी चली जाओगी तो क्या होगा। भाई तो कहता है मैं इसे मार दूंगा। भाभी कहती होश पकड़ो, जो भी है वो अमीर है। मैंने कहा आप मुझे शादी की इजाज़त दे दें, आपको महीने के महीने पैसे मिलते रहेंगे। भाई भी मान गया। उस डॉक्टर को घर ले गया और निकाह कर लिया। ये सब बहुत जल्दी में हुआ, कई दिन में रिश्ता और फिर निकाह। लेकिन मैं बेफिक्र थी कि उसने कोई सा असली वाली बीवी मान लेना है। निकाह भी अस्पताल में हुआ। मेरे पे क़यामत टूट पड़ी जब मुझसे निकाह करके वो मुझे अस्पताल लेकर एक कमरे में ले गए। कहते हैं तुम आराम करो, लेकिन अंदर की हालत देखकर मेरी जान निकल गई। जहाँ 11 डॉक्टर्स थे जो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा ये सब यहाँ क्यों हैं, तो सब हंसने लगे। मुझे कुछ गलत होने का खतरा महसूस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। कमरा भी बंद था, भाग भी नहीं सकती थी। किस्मत शुरू से ही खराब थी। कहते हमें पता है तुम लड़की नहीं हो। इस बार लड़खड़ाने लगी। ये तो मैंने राज रखा था, क्या अब ये राज नहीं रहा। मैं खौफज़दा नज़रों से उन्हें देखने लगी। मैं ख्वाजा सरा हूँ, इसका तो मैंने अपनी अम्मा को भी नहीं पता लगने दिया था। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं ख्वाजा सरा हूँ। कहते हम डॉक्टर होने के साथ गैंग भी चलाते हैं। किसी की कमज़ोरी तलाश करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं चुप कर गई। यकीनन उन्होंने मेरे ब्लड से या किसी हरकत से शक लगाया होगा। शायद कुछ रिपोर्ट मेरे इल्म के बगैर की हूँ। मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। आगे कुआं पीछे खाई, मैं कहाँ जा सकती थी। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा राज नहीं खोलेंगे। मैंने कहा आपको मुझसे क्या चाहिए, ऐसे ही तो राज नहीं रख सकते। मैंने उस लम्हे पर अफसोस किया जब मैं लालच में आकर निकाह कर बैठी थी। ठीक कहते हैं लालच बुरी बला है। कहते हैं तुम्हें कम इंजेक्शन देंगे, वो तुम मरीजों को लगाओगी, उसके अस्पताल में से किसी को खबर ना हो, लेकिन तुमने उन्हें मजीद बीमार करना है। मुझे ये सब बहुत गलत लगा। कैसे मैं किसी के जानों के साथ खेल सकती थी। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। कहते ठीक है, तुम्हारे भाई को बता देते हैं कि तुम नहीं कर सकती, फिर देख लेना क्या होता है। वो तुम्हें घर से निकाल देगा और क्या पता जान से ही मार दे। क्या मुंह दिखाओगी मास्टरे को। नौकरी से भी निकल गई, जहाँ तुम्हें नौकरी मिलेगी इतनी जगह तो बदनाम हो चुकी होगी। मैं खामोश हो गई। कुछ देर दिमाग में एक प्लान बनाया जिस पर अमल पैरा होना था। फिलहाल मैंने सबके सामने हाँ कर दी। कहते हैं अक्लमंद हो लेकिन होशियार नहीं करनी। फिर घर आ गई। भाभी कहती हैं शौहर के घर क्यों नहीं गई। मैंने झूठ बोल दिया कि ड्यूटी पे हैं, और मैं अकेले घर क्या करती। वो भी चुप हो गई। कुछ पैसे भाभी का मुंह बंद करने के लिए थमा दिए, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मुझे जैसे भी करके रात को यहाँ से भागना था। मैं लोगों की जानें नहीं ले सकती थी, इसमें तो उन्हीं का फ़ायदा था। लेकिन मैं क्यों किसी मासूम की जान लूँ। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं शहर छोड़कर भाग जाऊंगी। इतने पैसे मेरे पास थे कि कहीं जाकर हफ्ता एक गुजर बसर कर लूँ। कहीं नौकरी ढूंढ लेती, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना था। रात होते ही मुझे यकीन था कि सब सो रहे हैं। भाई और भाभी की नींद ऐसे ही पक्की थी, लेकिन मैंने एहतियातन सबको नींद वाली गोलियां देकर सुला दिया और रात को भाग गई। भागती भागती मुझे नहीं पता चला कि मुझे किस शहर जाना है। बस स्टॉप पर पहली गाड़ी शेखुपुरा की थी। मैं उसी पर बैठ गई। किसी अनजान शहर जाने में भी खौफ था, लेकिन मैं अपने ज़मीर की अदालत में नहीं खड़ी हो सकती थी। शेखुपुरा उतरते ही मैंने नाश्ता किया और निकल पड़ी किसी नौकरी की तलाश में, जो मुझे लग रहा था मिलना मुश्किल है। अब तक घर भी पता लग चुका होगा कि मैं भाग गई हूँ। मैं नाम नेहात शौहर ने न जाने उनसे कौन से झूठ बोले होंगे। अम्मा और भाभी ने पता नहीं कितनी गालियाँ दी होंगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। कहते हैं आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं, अल्लाह वसीला बना देता है। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को भेज देता है। मैंने एक बुजुर्ग बाबा से पूछा, जिनका छोटा सा चाय का स्टॉल था, कि यहाँ कोई नौकरी है। बाबा कहते हैं पुत्र तुझे क्यों तलाश है, क्या हुआ। वो बहुत शफकत से बात कर रहे थे। उम्र के इस हिस्से में भी काम पर थे। मैंने कहा मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं। वैसे मैं नर्स हूँ। सर पर हाथ रखा कहते हैं ज़माना बहुत जालिम है, न जाने अपने खून भी कैसे सफ़ेद हो जाते हैं। मैंने कहा बस बाबा क्या कह सकते हैं। कहते हैं मैं और मेरी बीवी ही रहते हैं घर में। वो भी नेक वक्त सारा दिन अकेली घर में रहकर उदास हो जाती है।
तुम हमारे घर रह लो, उसका भी दिल लगा रहेगा। मुझ पर यकीन रखो बेटा, चाय बनाते मुझे 30 साल हो गए। मैंने कहा बाबा मुझे यकीन है कि आप अच्छे इंसान हैं। घर के धक्कों से इतना तो इंसान की पहचान समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? आपकी औलाद को बुरा नहीं लगेगा? कहते हैं हमारी औलाद ही नहीं है। तुम रह सकती हो, मुझे भी जगह चाहिए थी, इसीलिए मैं उनके घर चल पड़ी। साफ सुथरा छोटा सा खुशबूदार घर था। वो मियाँ बीवी नमाजी परहेजी थे। वो दोनों नमाज की आदत मुझे भी डाल चुके थे। उनकी बीवी बहुत अच्छी थी। मैं काम करके उनको आराम देती थी। उन दोनों का गुजर बसर मुश्किल से होता था। मैंने करीब के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। सब मोहल्ले वालों को यही बताया कि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। अम्मा अब्बा के फौत होने पर यहाँ आ गई। मुझे यहाँ आए 5 माह हो गए थे। मैंने ऊपर ऊपर से सारा सच अम्मा को बता दिया। उन्हें अम्मा और बाबा कहने शुरू हो गई थी। उनकी बनी दुख भरी कहानी थी। इतने साल औलाद को तरसते रहे, फिर बुढ़ापे में समझौता कर लिया कि अब अकेले ही रहना है। बाबा कहते हैं तब तुम नहीं आई थी। मेरी बेगम उदास और बीमार रहती थी, वो अब ठीक हो गई है। कहते हैं तुम हमारी बेटी हो, इतनी फर्माबरदार हो, न जाने कौन बदबख्त भाई था। एक दिन मोहल्ले वाली औरत आई, कहती है अब ये जवान है, इसकी शादी का कुछ नहीं सोचा अम्मा? अम्मा कहती है मैं कैसे इसका फैसला कर सकती हूँ, यहाँ मेहमान है। वो बोली कि भाई रहती तो तुम्हारे पास है ना, बात करने में क्या हर्ज है। अम्मा को भी उनकी बात दुरुस्त लगी। जैसे ही मैं घर आई उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम्हारी उम्र हो रही है, हम सारी जिंदगी अपने फ़ायदे के लिए बिठा कर तो नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती। फिर थोड़े दिन खामोश रही। महीने के सारे पैसे अब्बा के हाथ में रखती और वो दुआएं देते नहीं थकते थे। फिर वो मोहल्ले की औरत मेरे होते आई और बोली आपने शादी का नहीं सोचा? मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। अम्मा मसलहत के तहत खामोश रही। मुझे इतना समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल मुझे बताना ही पड़ेगा। फिर मैंने शाम को अम्मा को जो कहा, अम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा अम्मा मुझे घर से निकालना नहीं, मैं खुद आई थी। मेरी शादी हुई और मेरे शौहर ने मुझे जाल में डालने के लिए निकाह किया और मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ 11 मर्द थे। कहते हैं कि तुम्हें अस्पताल में इंजेक्शन लगाने हैं। अम्मा मुंह खोले मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा मुझे ये नहीं करना था। मैं कैसे किसी की जान ले सकती थी? मैं घर जाती, सच बताती मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो वो मुझे जान से मार देते या सबको बता देते। मैं जहाँ जाती मैं नाचना भी नहीं चाहती थी। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मैं दिल खोल कर रोने लगी। कहती हैं अब तेरा राज राज ही रहेगा। कहती हैं तुम इधर ही रहोगी, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बाबा को भी नहीं पता लगने दूंगी। मैं तशक्कुर भरी नज़रों से उन्हें देखा। उनकी नेक नियति की कायल थी। ऐसे अच्छे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। अम्मा ने उस औरत को ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी इसका भाई बाहर होता है, जब तक वो नहीं आ जाता हम इसे निकाह नहीं कर सकते। वो चुप हो गई। मेरे सर से भी बला टली। जो खौफ मेरे अंदर था वो ख़त्म हो गया। मेरा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। उसने मुझे थाम लिया था, मुझे गिरने नहीं दिया था। अल्लाह की ज़मीन अभी मुझ पर तंग नहीं हुई थी। अच्छे लोगों से मिलवा दिया था। मुझे अब खौफ नहीं था कि कभी मेरे भाई मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो अब तक मुझ पर फातिहा पढ़ चुके होंगे। उन्होंने मुझे ढूंढना छोड़ दिया होगा और यहाँ वो आ भी नहीं सकते थे। अल्लाह कैसे किसी के राज रखने पर आए तो रखता है। इस बात को भी अब 10 साल गुजरने वाले हैं। इतना वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चला जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। मैं शेखुपुरा के उस मोहल्ले में ही रहती हूँ जहाँ सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। अम्मा और उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। मैंने अपने वालिदैन की तरह उनका ख्याल रखा। इस बात की तो मोहल्ले वाले भी कायल थे कि तुमने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैंने उन्हें हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उनका दिन रात ख्याल रखती थी। अब तो मेरी शादी की उम्र भी गुजर चुकी थी। हुस्न बरकरार था, अब भी रिश्ते आते थे, लेकिन मैं क्या करती? शादी करके खुद का तमाशा बनाती। मोहल्ले की औरतों को भी समझ लग गई थी कि इसने शादी नहीं करनी है, इसीलिए उन्होंने कहना छोड़ दिया था। एक दिन अस्पताल गई तो मेरी साथी नर्स ने बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत हालत ख़राब है, डॉक्टर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देख आते हैं। मरीज़ को देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं मेरा भाई था। मैंने कहा भाई? उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ करता रहा हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने लगे, कहते मैं मर जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो ताकि
मैं सुकून से मर सकूं। मेरी बीवी और अपनी माँ को सहारा दे देना। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने आपको माफ किया। मेरे बोलने की उनकी रूह परवास कर गई, जैसे वो यही बोझ उठाए फिर रहे थे। वो मर गए। मुझे समझ नहीं आई कि क्या बोलूं। उनको एहसास भी हुआ तो इस हिस्से में वो फौत हो गए थे। मैं ना गले भी ना लग सकी, उनसे लाड भी ना उठवा सकी। एक बड़े भाई के जाने से फिर जिंदगी वीरान हो गई थी। नर्स हैरान थी, कहती थी, ये तुम्हारे भाई तुमसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे? मैंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने घर से निकाल दिया था, इसीलिए। वो कहती, अच्छा। मेरी आंखें नम थी। पहले मैं जिन मियाँ बीवी के साथ रहती थी, उनकी मौत, अब मेरे भाई की मौत मुझे अंदर तक हिला दिया था। उनकी तदफीन का काम किया और फिर भाई के मोबाइल से भाभी को कॉल की। उन्हें भतीजे और अम्मा को घर लेकर आई थी। अम्मा और भाभी बहुत शर्मिंदा थी, कहती हैं, हमें माफ़ कर दो। सारी उम्र तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें बुरा भला कहा है, तुमसे घर के सारे काम करवाती थी, कभी कुछ उल्टा करने पर मारती थी, इतने बुरे बुरे लफ्ज़ कहकर तुम्हें हमेशा तकलीफ देती थी। तुम पर तुम्हारे भाई को फौक़ियत दी है, हमें माफ़ कर दो। भाभी कहती हैं, जब तुम घर से भागी तो वो डॉक्टर आ गया था कि मेरी बीवी किधर है। हमने कहा वो घर से भाग गई तो हंगामा करने लगा कि तुम लोग भी शामिल हो। फिर जब हमने कहा कि हमें खुद नहीं पता, अगर मिली तो मार देंगे, तो कहता है मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट पर निकाह किया था, वो मेरा काम न कर सकी, मैं भी उसका राज नहीं रखूँगा। वो ख्वाजा सरा थी। हमें यकीन न आया, लेकिन उसके बाद हमारे घर के हालात बहुत बुरे होते गए। तुम्हारे भाई को कहीं नौकरी न मिलती, तुम्हारी अम्मा बीमार रहने लगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हारा भाई भी जिंदगी की ठोकरें खाकर समझ चुका था। मैं भी जब अपने बच्चों को भूखा देखती तो मुझे अपनी गलती का बार बार एहसास होता था। हमने कितना बुरा कर दिया था। हम तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे थे, तुमसे माफ़ी मांग सके। हमारा ज़मीर हमें एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। देखो, किस्मत ने हमें मिलवाना था। तुम्हारे भाई इस शहर काम करने आए और तुमसे मिल गए। हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैंने आपको माफ़ किया, आप लोग मेरे अपने हैं। अगर आप गुमराही पर थे तो अल्लाह ने आपको एहसास दिलाया, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। आप मेरी भाभी हैं और वो मेरी माँ। मैं भला कैसे अपने खूनी रिश्तों से नाराज़ रह सकती हूँ? मैंने कहा, जब मैं घर से भागी थी तो मुझे ये मियाँ बीवी मिल गए थे, उम्र के आखिरी हिस्से में थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। बहुत नेक लोग थे। उन्होंने मेरा सच जानने के बाद भी इसे राज रखा था। मुझे मोहल्ले में इज्जत दिलाई, किसी के सामने मेरा राज नहीं खोला। मेरे दिल में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। मैं उनके साथ रहती, उनकी देखभाल करती और उनका खर्च उठाती थी। वो फौत हो गए, तब से अकेली हूँ। मेरा भतीजा भी बहुत प्यारा था। अम्मा कहती, तू हीरा है, तेरे भाई को भी बातों बातों में मैंने बिगाड़ा है, वरना वो भी तेरे जैसा होता। सही कहते थे तेरे अब्बा कि मैं अच्छी तरबियत नहीं कर रही, मुझे बाद में पछतावा होगा। मैंने कहा, अम्मा, सारी पुरानी बातें भूल जाओ, ऐसा होना किस्मत में लिखा था। दुनिया कितनी गोल है, बार बार जिंदगी में मौजे होते हैं। मुझे उम्मीद ना थी कि मैं अपने घर वालों को मिल पाऊंगी, लेकिन उसने दोबारा से मिलवा दिया था। मैं कमा रही थी, भतीजों को भी स्कूल में लगवा दिया था। वो शक्ल सूरत में सारे का सारा भाई पर गया था, लेकिन आदत उसकी मैंने वैसी ना होने दी थी। मैं खुद भी उसी घर में पढ़ाती थी। मुझे पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा आदमी बनाना था। कोई तंगी नहीं थी। जिंदगी की चलती इस पटरी में मैंने इतने झटके सहे थे कि मुझे अब लगने लगा था कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जिसको आप नामुमकिन कहकर रुक कर उम्मीद छोड़ दो। इस जिंदगी में हर चीज़ मुमकिन है। मैंने कभी न सोचा था कि मैं ख्वाजा सरा होंगी। पढ़ाई के बाद फिर नौकरी, और इस वक्त जो लोगों ने गेम खेली, मुझे लगा डॉक्टर तो मसीहा होता है, वो कैसे जान ले सकता है। बुरे लोगों की वजह से मुझे ही अब से भागना पड़ा।
ایسے گھر والے جن کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، پھر اسی برے لوگوں سے بھاگی، لیکن اللہ نے اچھے لوگوں سے ملوا دیا۔ کہ اس دنیا میں اللہ نے فرعون ہی پیدا نہیں کیے، کچھ ہدایات گزار بھی ہیں جنہوں نے کچھ رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی صرف انسانیت کا رشتہ نبھایا۔ اور اللہ بھی کیسے معجزہ کرتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے واپس مل گئے تھے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے میری زندگی سہل کر دی تھی۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔